بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے بچوں، میں آپ کو پاکستان انٹرنیشنل اسکول طائف کے ورچوئل لرننگ سسٹم میں خوش آمدید کہتی ہوں، اور میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ سب نے عید کو بھرپور طریقے سے انجوائے کیا ہوگا۔ پیارے بچوں، آج ہماری لیکچر نمبر 1 میں ہم اپنی اردو کی کتاب کی پہلی نظم حمد شروع کریں گے۔ یہ ہماری اردو کی کتاب ہے۔ آپ سب اپنی اپنی اردو کی کتابیں کھولیں اور صفحہ نمبر 32 پر آ جائیں۔ صفحہ نمبر 32 پر ہمارے پاس پہلی نظم ہے حمد۔ پیارے بچوں، یہاں آپ سب کے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ حمد کسے کہتے ہیں۔ حمد ایسی نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی ہو یا اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی گئی ہو، اسے حمد کہتے ہیں۔ دوبارہ دہرائے دیتی ہوں، حمد ایسی نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے اسے حمد کہتے ہیں۔ بچوں، جب بھی ہم کوئی سبق یا نظم شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے لیے اس نظم یا سبق کے خاص الفاظ کو پڑھنا آنا ضروری ہے۔ یہاں ہمارے پاس نظم حمد کے خاص الفاظ درج ذیل ہیں۔ ہمارے پاس پہلا لفظ ہے حمد، دوسرا لفظ ہے سنوارنا، تیسرا لفظ ہے چراغ، اور چوتھا لفظ ہے قدرت۔ میں آپ لوگوں کے لیے اسے دوبارہ دہرائے دیتی ہوں۔ پہلا لفظ ہے حمد، دوسرا لفظ ہے سنوارنا، تیسرا لفظ ہے چراغ، اور چوتھا لفظ ہے قدرت۔ بچوں، اب آپ سب میرے ساتھ ساتھ اسے دہرائیں۔ حمد، سنوارنا، چراغ، قدرت۔ یہاں میں امید کرتی ہوں آپ سب کو یہ چاروں الفاظ کو اچھے طریقے سے پڑھنا آ گیا ہوگا۔ اب ہم نظم حمد کی پڑھائی کریں گے۔ یہ ہیں خدا کے نشان سارے، زمیں پہ پھول آسماں پہ تارے، سجے ہیں یہ کیسے پیارے پیارے، زمیں پہ پھول آسماں پہ تارے، یہ باغ ایسے کھلائے کس نے، چراغ ایسے جلائے کس نے، یہ سب خدا ہی نے ہیں سنوارے، زمیں پہ پھول آسماں پہ تارے۔ خدا کی قدرت کے گیت گاؤ، خدا کو اپنی دعا سناؤ، خدا کی گاتے ہیں حمد سارے، زمیں پہ پھول آسماں پہ تارے۔ پیارے بچوں، یہ نظم حمد کے شاعر ہیں۔ شاعر اسے کہتے ہیں جس نے یہ حمد لکھی ہو یا کوئی نظم لکھی ہو۔ اس حمد کے لکھنے والے شاعر کا نام ہے اختر شیرانی۔ میں دوبارہ سے آپ لوگوں کے لیے اسے پڑھتی ہوں۔ یہ ہیں خدا کے نشان سارے، زمیں پہ پھول آسماں پہ تارے، سجے ہیں یہ کیسے پیارے پیارے، زمیں پہ پھول آسماں پہ تارے، یہ باغ ایسے کھلائے کس نے، چراغ ایسے جلائے کس نے، یہ سب خدا ہی نے ہیں سنوارے، زمیں پہ پھول آسماں پہ تارے۔ خدا کی قدرت کے گیت گاؤ، خدا کو اپنی دعا سناؤ، خدا کی گاتے ہیں حمد سارے، زمیں پہ پھول آسماں پہ تارے۔ اب بچوں، آپ سب میرے ساتھ ساتھ پڑھیں گے۔
یہ ہیں خدا کے نشان سارے، زمیں پہ پھول آسماں پہ تارے، سجے ہیں یہ کیسے پیارے پیارے، زمیں پہ پھول آسماں پہ تارے، یہ باغ ایسے کھلائے کس نے، چراغ ایسے جلائے کس نے، یہ سب خدا ہی نے ہیں سنوارے، زمیں پہ پھول آسماں پہ تارے، خدا کی قدرت کے گیت گاؤ، خدا کو اپنی دعا سناؤ، خدا کی گاتے ہیں حمد سارے، زمیں پہ پھول آسماں پہ تارے۔ پیارے بچوں، آپ سب نے اس حمد کو کم از کم 3 بار پڑھنا ہے اور 1 بار خوش خط لکھنا ہے۔ اب ہم اس کی مشق سٹارٹ کریں گے۔ ہمارے پاس مشق نمبر 1 ہے، مشکل الفاظ کے جوڑ توڑ۔ بچوں، مشکل الفاظ کے جوڑ توڑ سیکھنے سے الفاظ کی املا آسان ہو جاتی ہے۔ اب ہم اس سبق میں موجود مشکل الفاظ کے جوڑ توڑ کی مشق کرتے ہیں۔ سب سے پہلا ہے نون، شین اور الف۔ جب ہم نون، شین اور الف کو ملائیں گے تو یہ لفظ بن جائے گا نشاں، اور نون ساکن تو یہ لفظ ہو گیا نشان۔ آپ نے نون، شین اور الف کو جب ملایا تو لفظ بنا نشاں، اور نون ساکن تو یہ لفظ ہو گیا نشان۔ نمبر دوسرا، قاف، دال۔ جب آپ خوف اور دال کو ملائیں گے تو یہ بن جائے گا قد، اور رے ساکن اور تے ساکن تو یہ ہو گیا قدرت۔ کیا آپ سب کو پتا ہوگا کہ دال اور رے آپس میں نہیں جڑ سکتے، اسی لیے ہم نے یہاں پر قاف کو دال سے ملایا اور رے ساکن اور تے ساکن تو یہ لفظ بن گیا قدرت۔ تیسرا لفظ ہے ہمارے پاس پے، اور ہے کو جب آپ ملاؤ گے تو یہ ہو جائے گا پھے، اور اس کے ساتھ آپ واؤ کو بھی ملاؤ گے تو یہ ہو جائے گا پھو، اور لام ساکن، اب یہ لفظ ہو گیا پھول، پھول۔ دوبارہ دہرا دیتی ہوں، پے کو ہے سے ملانے سے لفظ بن گیا پھا، اور واؤ کو ملانے سے بن گیا پھو، اور لام ساکن، کیونکہ یہاں پر واؤ اور لام آپس میں نہیں مل سکتے۔ ابتدائی کلاسز میں آپ یہ جانتے ہوں گے کہ کچھ الفاظ کو ہم کچھ الفاظ کے ساتھ نہیں جوڑ سکتے، تو یہاں پر پے اور ہے کو ملانے سے پ، اور واؤ کو ملانے سے ہو گیا پھو، اور لام ساکن پھول۔ اب ہمارے پاس چوتھا لفظ ہے سین اور نون۔ سن، جب آپ اس کو الف کے ساتھ ملاؤ گے تو یہ ہو جائے گا سنا، حمزہ واؤ، سنا ہو، سنا ہو۔ دوبارہ دہرائی دیتی ہوں، نون، شین الف شاہ، نشاں، نون ساکن، نون، شین الف شاہ، نشاں، نون ساکن تو یہ ہو گیا نشان۔ قاف، دال، قد، رے تے رت، قدرت۔ پھے واو پھو، لام ساکن، پھول۔ سین، نون الف نا، سنا، حمزہ واؤ، سناؤ۔ اب آپ سب میرے ساتھ ساتھ پڑھیں، نون، شین الف شاہ، نشاں، نون ساکن، نشان۔ قاف، دال، قد، رے تے رت، قاف، دال، قد، رے تے رت، قدرت۔ پے ہے پھا واو، پھو، پھے واو پھو، لام ساکن، پھول۔
सीन नून अलिफ ना सुना, हमजा वाओ सुना हो। ये थी आपकी मश्क नंबर 1। अब हम मश्क नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। मश्क नंबर 2 है, दिए गए जुमलों में कुछ अल्फाज के नीचे लकीर लगाई गई है, इन अल्फाज के मायने पर दायरा लगाएं। सबसे पहला जुमला हमारे पास है, फल और फूल खुदा की कुदरत के निशान हैं। इस जुमले में लफ्ज़ कुदरत के मायने आपको तलाश करने हैं। हमारे पास पहला लफ्ज़ है ताकत, ज़ात, रहमत। तो लफ्ज़ कुदरत के मायने है ताकत। आपने लफ्ज़ ताकत को दायरा लगाना है और लफ्ज़ कुदरत को आपने के नीचे लकीर लगानी है। फल और फूल खुदा की कुदरत के निशान हैं। तो लफ्ज़ कुदरत के मायने है ताकत। नंबर दूसरा जुमला, नंबर दूसरे जुमले में अल्लाह ने तारों की सूरत में चिराग रोशन किए। अल्लाह ने तारों की सूरत में चिराग रोशन किए। इस जुमले में लफ्ज़ चिराग के मायने हैं शमा, सैयारे या आग। तो इस जुमले में लफ्ज़ चिराग के मायने हैं शमा। तो आपने लफ्ज़ शमा के गिर्द दायरा लगाना है। नंबर तीसरा जुमला हमारे पास है, ज़मीन पर फूलों के ज़रिए अल्लाह ने ज़मीन को संवारा। आपने इस जुमले में लफ्ज़ संवारा के मायने तलाश करने हैं। हमारे पास अल्फाज हैं, ठंडा बनाया, बेहतर बनाया, दरख्त लगाए। इस जुमले में लफ्ज़ संवारा के मायने है बेहतर बनाया। आपने लफ्ज़ बेहतर बनाया के गिर्द दायरा लगाना है। नंबर चौथा जुमला है, सारी मखलूक खुदा की हम्द करती है। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, लफ्ज़ हम्द के मायने हैं अल्लाह की तारीफ। अब यहाँ पर इन अल्फाज में आपने लफ्ज़ हम्द का सही मायने तलाश करना है। पहला वर्ड है हमारे पास मखलूक की तारीफ, अल्लाह की तारीफ, दुनिया की तारीफ। सारी मखलूक खुदा की हम्द करती है, सारी मखलूक खुदा की तारीफ करती है, अल्लाह की तारीफ करती है। तो आपने लफ्ज़ अल्लाह की तारीफ के गिर्द दायरा लगाना है। हम दोबारा मश्क नंबर 2 को दोहराते हैं। पहला जुमला है, फल और फूल खुदा की कुदरत के निशान हैं, और लफ्ज़ कुदरत के मायने हैं ताकत। नंबर दूसरा, अल्लाह ने तारों की सूरत में चिराग रोशन किए। चिराग, लफ्ज़ चिराग के मायने हैं शमा। तीसरा जुमला है, ज़मीन पर फूलों के ज़रिए अल्लाह ने ज़मीन को संवारा। लफ्ज़ संवारा का मतलब है बेहतर बनाया। नंबर चौथा जुमला है, सारी मखलूक खुदा की हम्द करती है। सारी मखलूक खुदा की तारीफ करती है, अल्लाह की तारीफ करती है। तो पहले जुमले का सही जवाब है ताकत। दूसरे जुमले में लफ्ज़ चिराग के मायने है शमा। तीसरे में लफ्ज़ संवारा का मायने है बेहतर बनाया। और चौथे जुमले में लफ्ज़ हम्द के मायने है अल्लाह की तारीफ। ये थी हमारी मश्क नंबर 2। अब हम मश्क नंबर 3 शुरू करेंगे। मश्क नंबर 3 में नीचे दिए गए अल्फाज के जुमले बनाएं। हमारे पास पहला लफ्ज़ है हम्द। बच्चों, आप इन अल्फाज को अपने जुमलों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला लफ्ज़ है हम्द। हमने इस लफ्ज़ हम्द को जुमले में इस तरह से इस्तेमाल किया है, सारी मखलूक खुदा की हम्द करती है। आप यहाँ पर इस लफ्ज़ हम्द की मदद से कोई और जुमला भी बना सकते हैं। सारी मखलूक खुदा की हम्द करती है।
नंबर दूसरा लफ्ज है संवारा। जमीन पर फूलों के जरिए अल्लाह ने जमीन को संवारा है। लफ्ज है संवारा। जमीन पर फूलों के जरिए अल्लाह ने जमीन को संवारा है। तीसरा लफ्ज है चिराग। यहाँ पर लफ्ज चिराग को आप जुमले में इस तरह से इस्तेमाल करेंगे, अल्लाह ने तारों की सूरत में आसमां पर चिराग रोशन किए हैं। अल्लाह ने तारों की सूरत में आसमां पर चिराग रोशन किए हैं। चौथा लफ्ज है कुदरत। लफ्ज कुदरत को आप इस तरह से इस्तेमाल करेंगे, अल्लाह को हर शय पर कुदरत हासिल है। अल्लाह को हर शय पर कुदरत हासिल है। पांचवा लफ्ज है गीत। परिंदे हर पल अल्लाह की रहमत के गीत गाते हैं। परिंदे हर पल अल्लाह की रहमत के गीत गाते हैं। हम दोबारा इसे दोहराते हैं। हम्द, सारी मखलूक खुदा की हम्द करती है। संवारा, ज़मीं पर फूलों के ज़रिए अल्लाह ने ज़मीं को संवारा है। चिराग, अल्लाह ने तारों की सूरत में आसमां पर चिराग रोशन किए हैं। कुदरत, अल्लाह को हर शय पे कुदरत हासिल है। गीत, परिंदे हर पल अल्लाह की रहमत के गीत गाते हैं। ये थी मश्क नंबर 3। बच्चों, आपने ये तमाम मश्कें अपनी किताब में हल करनी है और फिर इसे व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करनी है। मश्क नंबर 4, इस मश्क में हमें एक शेर दिया गया है जिसे हमने जुमलों में लिखना है। शेर है, खुदा की गाते हैं हमद सारे, खुदा की गाते हैं हमद सारे, ज़मीं पे फूल आसमां पे तारे। इस शेर को जुमलों में हम इस तरह से लिखेंगे। इस शेर में शायर अल्लाह की तारीफ बयान करते हुए कहता है कि अल्लाह ताला ने ज़मीन को खूबसूरत फूलों से सजाया है और आसमान को चमकते हुए तारों से रोशन किया है। अल्लाह ताला की सारी मखलूक अल्लाह की हम्दो सना करती है और शुक्र अदा करती है। हम दोबारा से इसे दोहराते हैं। हमारे पास शेर है, खुदा की गाते हैं हमद सारे, ज़मीं पे फूल आसमां पे तारे। इस शेर को जुमलों में आप इस तरह इस्तेमाल करोगे। इस शेर में शायर अल्लाह की तारीफ बयान करते हुए कहता है कि अल्लाह ताला ने ज़मीन को खूबसूरत फूलों से सजाया है और आसमान को चमकते हुए तारों से रोशन किया है। अल्लाह ताला की सारी मखलूक अल्लाह की हम्दो सना करती है और शुक्र अदा करती है। बच्चों, ये थी हमारी मश्क नंबर 4। अब हम शुरू करेंगे मश्क नंबर 5। मश्क नंबर 5 में दुरुस्त अल्फाज लगाकर खाली जगह पुर करें। हमारे पास अल्फाज हैं निशान, फूल, कुदरत, बाग और प्यारे। दोबारा दोहराते हैं। निशान, फूल, कुदरत, बाग, प्यारे। बच्चों, यहाँ पर पहले से ही खाली जगह पुर की गई हैं, लेकिन आप लोग अपनी किताब में इन खाली जगहों को पुर करेंगे। पहली खाली जगह है, सजे हैं ये कैसे डैश प्यारे। सजे हैं ये कैसे डैश प्यारे। अगर आप हमद को अच्छे तरीके से हमद की पढ़ाई करेंगे तो आपको बआसानी पता चल जाएगा कि इस खाली जगह में कौन सा लफ्ज़ आएगा, क्योंकि ये सारे जुमले आपकी नज़म हमद से ही लिए गए हैं। सजे हैं ये कैसे प्यारे प्यारे। नंबर दूसरा, ये हैं खुदा के डैश सारे, ये हैं खुदा के निशान सारे। तीसरा है, ये डैश ऐसे खिलाए किसने,
यहाँ पर आप लफ्ज़ यूज़ करोगे, इस्तेमाल करोगे बाग। ये बाग ऐसे खिलाए किसने। नंबर 4, ज़मीन पे फूल आसमां पे तारे। यहाँ पर हम इस खाली जगह को लफ्ज़ फूल की मदद से पुर करेंगे। ज़मीन पे फूल आसमां पे तारे। नंबर 5वां जुमला है खुदा की डैश के गीत गाओ। खुदा की कुदरत के गीत गाओ। दोबारा से इसे पढ़ते हैं। सजे हैं ये कैसे प्यारे प्यारे, ये हैं खुदा के निशान सारे। ये बाग ऐसे खिलाए किसने, ज़मीं पे फूल आसमां पे तारे। खुदा की कुदरत के गीत गाओ। बच्चों ये थी मश्क नंबर 5। अब हम मश्क नंबर 6 शुरू करेंगे। मश्क नंबर 6 में बच्चों अगर आपको याद है कि जब कोई सवाल लिखा जाता है तो उसके आखिर में सवालिया निशान की अलामत लगाई जाती है, और जब कोई जुमला मुकम्मल होता है तो उसके आखिर में नुक्ता लगाया जाता है। अब आपको ये जुमले दिए गए हैं। आपने इन जुमलों को पढ़कर ये फैसला करना है कि इसके आखिर में कौन सी निशानी आएगी। डैश आएगी यानी नुक्ता आएगा, या फिर सवालिया निशान। पहला जुमला हमारे पास है, अल्लाह ने सारी कायनात बनाई है। इस जुमले में आपसे कोई सवाल नहीं किया गया। आप बिल्कुल एक सीधा मुकम्मल जुमला है, तो इसके आखिर में आप जुमला मुकम्मल होने की निशानी यानी नुक्ता या डैश लगाओगे। अल्लाह ने, उर्दू में नुक्ता इस तरह से लगाया जाता है, अल्लाह ने सारी कायनात बनाई है। तो यहाँ पर इसको डैश का वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। अल्लाह ने सारी कायनात बनाई है। ये एक कंप्लीट जुमला है। नंबर दूसरा है हमारे पास, क्या आपने अपना काम ख़त्म कर लिया है। इस जुमले में आपसे सवाल किया गया है। यहाँ ये लफ्ज़ क्या इस्तेमाल करके आपसे सवाल किया गया है। क्या आपने अपना काम ख़त्म कर लिया है। तो आप इस जुमले के आखिर में सवालिया निशान लगाएंगे। नंबर तीसरा जुमला है, अदील बाग में जा रहा है। ये भी एक मुकम्मल जुमला है। तो इस जुमले के आखिर में आप फुल स्टॉप, डैश यानी नुक्ते की निशानी लगाएंगे। नंबर चौथा जुमला है, सबा अपना सबक याद कर रही है। इस जुमले में भी आपसे कोई सवाल नहीं किया गया, एक मुकम्मल जुमला है। तो इस जुमले के आखिर में भी आप डैश के निशाने यानी नुक्ते के निशाने लगाएंगे। नंबर पांचवा है, दरख्त के करीब कौन खड़ा है। दरख्त के करीब कौन खड़ा है। इस जुमले में आपसे लफ्ज़ कौन लगाकर सवाल किया गया है। तो आप इस जुमले के आखिर में सवालिया निशान लगाएंगे। हम दोबारा से दोहराते हैं, अल्लाह ने सारी कायनात बनाई है, फुल स्टॉप। क्या आपने अपना काम ख़त्म कर लिया है, सवालिया निशान। अदील बाग में जा रहा है, डैश यानी नुक्ता। सब अपना सबक याद कर रही है, डैश यानी नुक्ता, फुल स्टॉप। दरख्त के करीब कौन खड़ा है, सवालिया निशान। ये थी आपकी मश्क नंबर 6। अब बच्चों इन तमाम मशकों को आपने अपनी कॉपी में लिखना है। यहाँ पर इस नज़म में हमारे पास सवाल और जवाबात नहीं हैं। इस नज़म में आप तमाम मशकों को अपनी किताब में कंप्लीट करेंगे यानी मुकम्मल करेंगे, और उसके बाद उसको अपनी कॉपी में भी लिखेंगे। इमला के अल्फाज को 5 बार खुशखत लिखना है। एक लफ्ज़ को आपने 5 बार खुशखत लिखना है। और तीसरा आपका काम है सबक की पढ़ाई 3 बार करनी है, और फिर पढ़ाई करते हुए अपनी वॉइस रिकॉर्ड करके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करनी है। ओके बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ आज का लेक्चर आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा, और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट डे पर नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर होंगे। ओके बच्चों, बेस्ट ऑफ लक।